Now the next topic is very important, which is array formula, and which is very important but easy hai. If you just create the logic, so it's very easy to understand that array formulas. Now array, what is array? Array is just a collection of items. And array strip आपके, it's not only with Excel. Array is with each and every language, each and every programming language, each and every application. Array is used to, or array, we can say that array is just a collection of multiple items, be it be text, numbers, date, time, सबको अगर एक bucket में रख देंगे, that bucket is known as array. Now what is the use of array? अब एक चीज बताइए, let us suppose in a bucket I have just added something and the value is 5. उसका 5 है value. I have added one thing, that is 5. I have added another item and the value is 10. Now if I wanted to calculate the total value, so what could be the total value? Total value क्या है उस bucket का? Right. The first item that I have kept, that is 5, and the second item that is kept, that is 10. So what is the total value of that array? 10 और 5, 15 हो गया ना? 15. Similarly, suppose a bucket we have kept Amit, we have kept Rajiv, we have kept Sachin. इसी तरह से काफी सारा चीज है. Now, once I have kept everything in a bucket, तो वहां से मैं खींच भी सकता हूं. I can take the data from that bucket as per the condition. And here comes the role of arrays. Arrays का मतलब होता है एक bucket में हमने सामान रख दिया है. Now we wanted to get something out of that bucket using some calculations. So let us see. So in Excel, array formulas are used when we have to do the things in multiple steps. जब मैं multiple steps में चीजों को करूंगा, in that case we can use array formulas. Now here a question would be stuck in your mind कि multiple steps का मतलब हमने ये भी तो किया था, VLOOKUP with match and index with match. So those were not the multiple steps. Those were the multiple functions, multiple formulas. Here we are going to see multiple steps. Let us take an example. एक example देखते हैं. You'll be able to understand. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now, let's suppose these are some text. I wanted to calculate the total number of characters. बताइए Excel में function कौन से function? Which function is used to count the number of characters? Which function is used to count the number of characters? बताइए. Which function? Anybody? Number of characters निकालने के लिए कौन सा function को हमने use किया था? Len function is used to len. Len function से क्या निकलता है? Number of characters. Now len function has some limitation. It is not capable of counting or checking numbers from different range. एक range से नहीं कर सकता है. अगर मैं range से करता भी हूँ, if I am going to select the range, so it's coming like this. ये ऐसे आ जाएगा. उसके बाद मुझे total करना पड़ेगा, and this is the total, which is the 26. Now this is the result that I wanted. इसको single step में नहीं कर सकते. First I have to calculate the length, and then I have to calculate the sum. ये clear है? Len करके sum करना पड़ा. This is clear. These are the two steps that we have to do. This is clear, yes, everybody. अब देखिए इसको convert कैसे करें? Here comes the role of array formulas. अगर मैं आपको बताता हूँ, if I'm going to select len, ये देखिए len करता हूँ. Let us evaluate this one. अगर मैं इसको evaluate करता हूँ, this entire thing is to be evaluated. F9. So it's coming like this: 3, 4, 3, 5, 3, 5, 3. So what is this? These are the individual length. अब हमें क्या करना है? I have to do the sum. So sum के अंदर len आएगा, where len is creating an array. Len array को create कर रहा है. Array is what? Array is collection of items. तो जो आपने यहाँ पर देखा था items. These are the items, that is the array. This one. Now I have to do the sum. Now in array, we have to press Control Shift Enter, not Enter. But if you are using the current version, अगर latest version है तब तो ये दिखा देगा 26. But if you are using 2016, 2000, let's say 13, so Control Shift Enter is the recommended one. Control Shift Enter जैसे मैं करूंगा,
so automatically it's creating a curly bracket, left or right में curly bracket create कर रहा है, and this is basically calculating. So control shift enter is used to finalize or get the array formulas output, and it is always recommended that if you are using array formulas, then please use control shift enter, because if you are going to send this file to someone, अगर इस फाइल को आप किसी और को भेज रहे हो तो नॉर्मली वहां पर एरर आ जाएगा if they are using older version. So it's better to use control shift enter, and control shift enter is basically applicable on each and every version. It will work in all the version, compatible है. ये क्लियर हो गया कि किस तरह से एरे का काम कर रहे हैं, एरे का रोल क्या है, कहां पर हो रहा है. दिस इज क्लियर. और एग्जांपल देखते हैं. लेट अस सी वन मोर एग्जांपल. ABCD नाउ आई वांटेड टू काउंट कि यहां पर 3 कैरेक्टर्स के कौन है. नाउ यहां पर नंबर्स भी है, नंबर्स. So I wanted to count everything which is 3 characters. बताइए 3 characters को कैसे चेक करें? How can we check that which are having these 3 characters? बताइए 3 characters को कैसे चेक करें? First of all, we can check the length of each and everything. And if the length is equals to 3, means these are 3 characters. यहां तक क्लियर है? These are 3 characters. This is clear, everybody, this step? Yes, sir. Now what we can do equals to length of each and everything is equals to 3 or not. Now it will give me a result as true or false. Now how can I convert any result, any true or false to 1 0? 1 0 में कैसे convert करते हैं? Anybody? How to convert any true to 1 and false to 0? if को यूज कर सकते हैं. मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं जिसमें if की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप देखिए ध्यान से. true लिखा हुआ है equals to minus this. माइनस दिस का मतलब क्या आना चाहिए? बताइए माइनस दिस का मतलब क्या आना चाहिए? False. नहीं, माइनस दिस मतलब हो गया -1. ट्रू 1 है. ट्रू 1 तब है जब उसमें कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करेंगे. ध्यान दीजिएगा, ट्रू इटसेल्फ में 1 नहीं है. ट्रू अगर ऐसे रख दूंगा तो ट्रू इज ट्रू, बट व्हेनेवर वी आर गोइंग टू डू एनी कैलकुलेशन तो ट्रू फिर 1 में कन्वर्ट हो जाता ऑटोमेटिकली. सो दैट्स द रीजन वी हैव यूज्ड माइनस. ये तो माइनस कन्वर्ट हो गया तो ये -1 आ गया. अब बताइए मुझे 1 चाहिए, तो हाउ कैन वी डू दिस? I want 1, not -1. So minus, this one, double minus. Clear? This is clear. Double minus concept is clear. Yes, sir. Now in case of false, same process. ये तो 0 ही आएगा. Now we are going to use the same concept. This is giving me true or false. So what I'll do? Minus, bracket close this, bracket close this. Yes, so sir. this is going to convert true or false to 1 and 0. अब आप बताओ मुझे 1 को चाहिए, 1 का टोटल करना. So then which formula I'll be using? Sum. So no if is required. Control shift enter. So total 8 है जहां पर 3 characters है. This as simple. So we are converting true false to 1 0 and then we are simply doing the sum. और ये पूरे array formula में लॉजिक ऐसे ही काम करेगा. This is the logic. यहाँ तक क्लियर है? सर जैसे आपने सर यहाँ पे ना माइनस यूज किया सर, ट्रू टर्म माइनस. अगर सर यहाँ पे सर हम सर यूज करें if फंक्शन तो उससे नहीं होगा? बिल्कुल कर सकते हैं. देखिए if अगर करूंगा तो कैसे काम करेगा मैं आपको दिखाता हूँ. अगर मैं इसको यूज नहीं करता तो ऐसे करता. सम if length is equals to 3, right, then 1 else 0.
ब्रैकेट क्लोज कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो ये 8 बताएगा कि अगर लेन 3 है, ट्रू के केस में 1 कर दीजिए, फॉल्स के केस में 0 कर दीजिए, एंड देन डू द सम। तो सेम चीज है, दिस इज बोथ आर सेम। यहाँ पर इफ यूज हुआ, यहाँ पर इफ की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है ना। आप दोनों में से कोई भी मेथड को यूज कर सकते हो, बोथ आर सेम। नाउ अब आते हैं एक और नए चीज में। सपोज A, B, C, D. This is written in multiple rows equals to this. ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, और इसको मैं इवेल्युएट कर रहा हूं। लेट अस चेक कि ये स्टोर्ड कैसे होता है। सो दिस इज स्टोर्ड सेपरेटेड बाय कॉमा। ये क्लियर है कि अगर एक सिंगल कॉलम मल्टीपल रोज में होगा तो सेमी कॉलन से ये सेपरेटेड हो रहा है। दिस इज सेपरेटेड बाय सेमी कॉलन। Now whenever the data is in like this ABCD, now if I am going to select like this, अगर मुझे देखना है कि ये डेटा कैसे स्टोर्ड होता है, so this is stored as comma, same row comma multiple rows semicolon. This is clear? ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया। Now इसको रिवर्स करते हैं। हमने इससे इसको ट्राई किया, इससे हमने ले आए ये फॉर्मेट में। Let us try to write this format. So I'll just select the 4 cells. 4 सेल्स को सिलेक्ट करते हैं, इक्वल्स टू करली ब्रैकेट में लेते हैं 1 सेमीकोलन 2 सेमीकोलन 3 सेमीकोलन 4। आई हैव नॉट यूज्ड डबल कोट्स बिकॉज दीज आर नंबर्स। बताइए कंट्रोल शिफ्ट एंटर करने पे क्या होना चाहिए, बताइए। इफ आई एम गोइंग टू डू कंट्रोल शिफ्ट एंटर देन व्हाट विल हैपन? नथिंग एल्स। These are into 4 different rows, right? अब this is an array. अगर मैं किसी एक को डिलीट करूंगा तो ये डिलीट नहीं होगा। You can't change part of an array. So these are the part of an array. So if I have to delete, so I can delete this one. So this is I have created an array like this. Similarly, equals to 1, 2, 3. Control Shift Enter. Sorry, 1, 2, 3. I have to do this one. Equals to curly bracket 1, 2, 3. Control Shift Enter. This is showing 1, 2, 3. So if I have to use anything that is in multiple rows, so I have to use like this. Multiple columns, so I have to use like this. ये हमें आगे जाके यूज करना है, अभी हम सिर्फ कंसेप्ट को समझ रहे हैं। क्लियर आ रहा समझ में? याद नहीं रखिए, सिर्फ समझिए कि वी आर यूजिंग सेमीकोलन। यहां पर मैं सिर्फ आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं कि semicolon is used for multiple lines, simple, and comma is used for single line. Clear? Yes sir. अब इसको एग्जांपल में करेंगे आगे जाके। Let us see, एक एग्जांपल देखते हैं। Suppose these are few numbers. First to rand between 10 से 99 या 100 से 999. Suppose these are few numbers and I wanted to find the top 3 numbers को find करना है। बताइए to find the top 3 क्या है, बताइए। to find the top 3 which function? max function। large है ना। large में 1, large में 2, large में 3। now let us see. Yes, we have selected 3 rows equals to large. Array is this one. Now k का मतलब क्या है? 1, 2, 3. So करली ब्रैकेट में 1 सेमीकोलन 2 सेमीकोलन 3। सेमीकोलन का पर्पस समझ में आ रहा है यहाँ पर हमने क्यों किया है? मींस वर्टिकल लाने के लिए उसको मल्टीपल रोज में हमें डेटा को लाना है। ब्रैकेट क्लोज कंट्रोल शिफ्ट एंटर। देखिए एक ही बार में आ गया टॉप 3 सिंगल गो में। ओके सर, राइट। सो एरे फॉर्मूला को हम तब यूज करेंगे जब हमें क्विक वे में रिजल्ट चाहिए और सिक्योर्ड होता है। देख रहे हो आप, कोई डिलीट नहीं कर सकता इसको। डिलीट करना पड़ेगा तो पूरा रिजल्ट ही उनको डिलीट करना पड़ेगा, बीच में कोई ऑल्टरेशन नहीं। ओके सर। अब तीनों में फॉर्मूला सेम है बट रिजल्ट इज डिफरेंट। द फॉर्मूला इज सेम, द रिजल्ट इज डिफरेंट, मींस दिस इज एन एरे फॉर्मूला। तो ये है एरे। अब इसका और कुछ एग्जांपल्स करते हैं। यहाँ पर हमने समझ लिया 2-3 चीज। एक तो समझ लिया कि माइनस का क्या यूज है, व्हाट इज द यूज ऑफ माइनस। नेक्स्ट वी हैव सीन
कि मल्टीपल रोज और मल्टीपल कॉलम्स का क्या पर्पस है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कंट्रोल शिफ्ट एंटर. नाउ लेट अस सी डिफरेंट एग्जांपल्स. कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं, क्लियर हो जाएगा. सपोज वी हैव नेम and we have city. A, B, C, D, E, F, A, G, H, I, J, A, K, L, C, M. और ये सिटी हो गया. जैसे ए का एक हो गया मुंबई, एक हो गया आपके ए का कोलकाता, अगेन एक कोलकाता. सी का एक हो गया दिल्ली और एक सी का हो गया मुंबई. ना इन सबको फिर लिख देता हूँ. दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर. नाउ आई हैव टू चेक कि यहाँ पर ए कितने बार है. हाउ मेनी ए आर देयर, बताइए. और एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक नया चीज कि इन एरे इफ आई एम गोइंग टू चेक कंडीशन, सो इट कुड बी थ्री कंडीशन, एंड और नॉट. In case of and, the sign is asterisk. In case of or, we have to use plus. In case of not, we have to use this. So these are the three signs. And जब भी हम use करेंगे, we have to use asterisk. और का मतलब हो गया प्लस. अब आप बताइए, यहां पर मुझे a का काउंट करना है. How many a is there? So how can we check? Equals to this one is equals to a. बताइए इसका रिजल्ट आइदर ट्रू और फॉल्स, यही तो होंगे ना, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा. अब मुझे ट्रू फॉल्स को 1-0 में कन्वर्ट करना. हाउ कैन वी कन्वर्ट दिस ट्रू फॉल्स टू 1-0? पुट m माइनस. बिल्कुल. दिस वन इज देयर. नाउ व्हाट वी हैव टू डू द सम. कि जितने भी 1 आ गया उसका सम कर देंगे. So I'll be getting the result. Bracket close. Control shift enter. And this can also be done with if. If से करेंगे तो कैसा होगा, देखिए. Equals to sum if this is equals to a. अगर ये a है, this is true, then 1 नहीं तो 0, bracket close, control shift enter. 3. Both are same. Clear? This is clear. Now the question is, A के साथ मुझे कोलकाता को फाइंड करना है कि how many A is having A and कोलकाता. A के साथ कोलकाता, बताइए and या और? And और A के साथ कोलकाता. And कि here we have to check for A and here we have to check for कोलकाता. Let us see. Equals to, we can do like this. This is equals to A, right? Now it's not required to use minus as of now. अभी करने की जरूरत नहीं, because I am going to multiply. यहाँ पर ऑलरेडी मैं क्या कर रहा हूँ, I am already multiplying. अगर आपने ध्यान दिया होगा, I am already multiplying both this. तो न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस ऑलरेडी किया हुआ है. This is equals to कोलकाता. Now let us see. अब देखते क्या होगा. Sum, will it work or not? बताइए ये काम करेगा या नहीं करेगा. Will it work or not? करेगा सर. कंट्रोल शिफ्ट एंटर. ये बता दिया. दो सिंपल. अब क्लियर हो रहा है धीरे धीरे. यस सर. कि हमें ट्रू फॉल्स को नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा. देयर वी हैव यूज्ड माइनस और यहाँ पर ऑलरेडी मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, एंड यूज हो रहा है. सो यहाँ पर कैलकुलेशंस की अलग से जरूरत है. However, we can do, मैं माइनस कर सकता हूं, बट रिक्वायरमेंट नहीं. नाउ द क्वेश्चन इज कि ए के साथ कोलकाता चाहिए या वी हैव टू फाइंड ए और सी. आई जस्ट वांटेड टू काउंट ए और सी मिला के कितने यहाँ पर. हाउ मेनी ए और सी, बताइए. एंड होगा या और होगा? एंड. ए सी. एंड नहीं होगा ना, या तो ए होगा या तो सी होगा, दोनों तो एक साथ नहीं होगा. और ओके ओके. दिस इज इक्वल्स टू ए. और के लिए क्या होगा? प्लस. दिस इज
इक्वल्स टू सी, सिंपल, सम। सो 5 है टोटल, ए और सी मिला। नाउ सपोज वी हैव अ डेटा लाइक दिस, यहाँ पर आपके स्कोर्स भी है। लेट अस पुट सम स्कोर इक्वल्स टू रैंड बिटवीन 1 to 9। Now I have to do the calculation based upon A and कोलकाता। ए कोलकाता का मुझे टोटल चाहिए, ए कोलकाता का टोटल। बताइए व्हाट आई हैव टू डू, ए कोलकाता का टोटल, नॉट द काउंट, ऑल आई वांटेड द टोटल। सो इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू ए इनटू दिस इज इक्वल्स टू कोलकाता। अब बताइए इसका रोल कैसे आएगा, स्कोर्स, हाउ कैन वी पुट द स्कोर्स? लेट अस सी इनटू अगेन दिस वन। अब आप बताओ इसका रिजल्ट क्या आएगा, इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा बताइए, इसका रिजल्ट क्या आएगा, फर्स्ट टू का रिजल्ट क्या आएगा? आइदर 1 और 0, यही तो आएंगे ना, 1 0 ही तो आएगा। 1 0 इज मल्टीप्लाइड बाय रिस्पेक्टिव नंबर्स, तो जो 1 से होगा वही मल्टीप्लाई होगा और बाकी जो 0 है वो 0 हो जाएगा। जी सर। बस उसी का टोटल करना है, सम करना है। कंट्रोल शिफ्ट एंटर। दिस इज शोइंग 0, क्यों? क्योंकि यहां पर हमने इसको ब्रैकेट ये नहीं किया, लाइक दिस। ये टोटल 8, ए एंड कोलकाता 8। कैसे? ए कोलकाता इज हियर 5, दिस इज 5 एंड दिस ए कोलकाता इज 3, सो टोटल 8। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज द एरे फॉर्मूलाज। अभी एरे फॉर्मूला खत्म नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये हमने एक स्ट्रक्चर देखा है। टू कंप्लीट द नेक्स्ट लेवल ऑफ एरे फॉर्मूलाज वेयर वी आर गोइंग टू सी वी लुकअप को यूज करेंगे लेफ्ट साइड से डेटा लेने के लिए। वी आर गोइंग टू लर्न 3D लुकअप, 4D लुकअप, 5D लुकअप इन द नेक्स्ट सेशन। 2D तक तो हमने देख लिया था, वी आर गोइंग टू सी 3D, 4D, 5D, समथिंग लाइक दिस। सो ये हो गया।